Good morning, students. Today we'll start our next chapter regarding consumers equilibrium. Okay, and that will be based on ordinal approach of consumers equilibrium. Okay, in our previous chapter, as we have discussed, we have studied the consumers equilibrium on the basis of cardinal approach. Okay, we have discussed it earlier that the two economists or many economists were of different opinion that some were saying that the consumer's satisfaction or consumer's equilibrium can be cardinally measured, whereas the others were of the opinion that the consumer's equilibrium cannot be measured cardinally. Okay, it can only be ranked as high or low. Okay, that is the ordinal concept. Okay, that means the economists who were of the opinion or who are of the opinion that the consumer's equilibrium is ranked as or can be ranked as high and low, this concept is the ordinal approach. Okay, and the cardinal approach was like the consumer's equilibrium or satisfaction level can be measured in cardinal numbers. That means 1, 2, 3, 4. Okay, that we have discussed in earlier chapter, previous chapter, that 1 util, 2 util, 3 utils, 5 utils, 10 utils, 20 utils are derived by the or gained by the consumer by consuming a unit or some units of a commodity. Okay, so Professor or Dr. Marshall was of the opinion of the cardinal approach, that he said that the equilibrium level can be expressed in cardinal numbers, whereas Professor Hicks was exactly opposite. He challenged, okay, he challenged Dr. Marshall's approach that equilibrium level cannot be expressed cardinally or cannot be measured cardinally or in cardinal numbers. Okay, that was the main or the major limitation of कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन कार्डिनल अप्रोच. ओके, और यूटिलिटी एनालिसिस की जो मेजर लिमिटेशन थी वो यही थी कि कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम को हम कार्डिनली मेजर कर सकते हैं, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है. जनरली भी हम ऐसा नहीं करते हैं कि हमें कितना कोई भी चीज़ हम कंज्यूम करते हैं तो वी डू नॉट से कि मुझे 20 यूटिल्स मिला एक एप्पल कंज्यूम करने पे. ओके, हम जनरली ऐसा नहीं करते हैं. ठीक है, 2 एप्पल खाए, 3 एप्पल खाए, 4 एप्पल खाए, तब हम कहते हैं वट एवर जो भी हमने कंजम्पशन का पैटर्न अडॉप्ट किया है हम कर रहे हैं. ओके, so I'm fully satisfied or I'm satisfied now or better it is now. Okay, or I'm feeling better now. Okay, ऐसा कुछ हम कहते हैं rank high or low or better or not. Okay, ऐसा कुछ हम यूज़ करते हैं, बट नंबर्स हम जनरली यूज़ नहीं करते हैं. ठीक है, तो प्रोफेसर हिक्स के अकॉर्डिंग जो है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम को हम कार्डिनल नंबर मीन्स 1 2 3 4 5 के फॉर्म में जो है, ठीक है, जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम यूज़ करते हैं. ठीक है, नेगेटिव और पॉजिटिव वोट एवर जो इंटीजर्स हम यूज़ करते हैं मैथ्स में. ठीक है, नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर उनकी फॉर्म में हम एक्सप्रेस नहीं करते हैं कंज्यूमर्स की इक्विलिब्रियम को. ओके, उसको रैंक किया जा सकता है हाई और लो की फॉर्म में. क्लियर. सो उसी के ऊपर बेस्ड हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, दैट इज इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस. ओके, इसको जो ग्राफिकली हम प्रेजेंट करेंगे एक कर्व के थ्रू, एंड दैट इज द ऑर्डिनल अप्रोच. ओके, हाई और लो के बेस पे हम इसको डिफाइन करते हुए होंगे. सो बेसिकली कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम जो कॉन्सेप्ट है और द कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विल बी द सेम विच वी हैव स्टडीड और लर्नड इन आवर प्रीवियस चैप्टर. ओके, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का जो कॉन्सेप्ट था वो सेम रहेगा. ओके, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ होगी, जहाँ पे कंज्यूमर अपने आप को मैक्सिमम सेटिस्फाइड फील करेगा. ओके, सो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इज अ स्टेट वेयर द कंज्यूमर फाइंड हिमसेल्फ और हरसेल्फ in maximum satisfaction. Okay, or where he or she put himself or herself in maximum satisfaction. Okay, or where he or she maximizes his satisfaction or her satisfaction. Okay, कुछ भी तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं. Okay, so consumer equilibrium क्या है कि within his given income according to the given prices the state or the condition where the consumer find himself इन मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन स्टेट. ओके, कंडीशन और स्टेट जहाँ पे वो मैक्सिमम सेटिस्फाइड है. ठीक है, या फिर ही मैक्सिमाइजेस हिज सेटिस्फैक्शन विद इन हिज गिवन इनकम एंड गिवन प्राइसेस, दैट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. ओके, बहुत सिंपल से बोलें, सो द स्टेट वेयर द कंज्यूमर मैक्सिमाइजेस हिज सेटिस्फैक्शन. ओके, द स्टेट और द कंडीशन और द सिचुएशन, वो स्थिति. ओके, वेयर द कंज्यूमर मैक्सिमाइजेस his or her satisfaction within the given income and given prices. Okay, so that is called consumers equilibrium. Clear.
सो कार्डिनल और ऑर्डिनल अप्रोच हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट हम ऑर्डिनल अप्रोच के अकॉर्डिंग, ठीक है, आईसी कर्व के थ्रू, ये इंडिफरेंस कर्व है आईसी, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इंडिफरेंस कर्व की कुछ अजम्पशंस हैं इस अप्रोच को जो हम स्टडी कर रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग हम कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो इसके हम कुछ अजम्पशन, ओके, कोई भी प्रिंसिपल या कोई भी थ्योरी जब है तो उसकी कुछ अजम्पशन, वो कुछ अजम्पशंस के ऊपर बेस्ड होता है। लाइक मैथ्स में भी हम बहुत सारी चीज़ें, साइंस में भी जो कुछ सर्टेन अजम्पशंस हम लेके चलते हैं, कोई भी लॉ है, ठीक है, तो कोई भी लॉ हम फॉलो करते हैं, लाइक लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई जो हम फॉलो करते हैं, तो उन सब की कुछ सर्टेन अजम्पशंस होती हैं। तो कोई भी लॉ या कोई भी प्रिंसिपल विदाउट अजम्पशंस उनको हम प्रूव नहीं कर सकते या फॉलो नहीं कर सकते, ओके, दे आर मीनिंगलेस अगर वो अजम्पशंस वहाँ पे नहीं है तो, ठीक है, कुछ चीज़ें हम अज्यूम करके चलते हैं पहले। तो इंडिफरेंस कर्व जो कॉन्सेप्ट है उसके लिए भी हम कुछ अजम्पशंस लेके चलेंगे। वो अजम्पशंस क्या है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये अजम्पशंस इंडिफरेंस कर्व की, ठीक है, तो हम इनको लाइन बाय लाइन समझते हैं। फर्स्ट, जो कि हमने कुछ इनमें से वो भी अजम्पशंस रहेंगे जो हमने पिछले चैप्टर में भी डिस्कस की है, लाइक मनी इनकम और इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज फिक्स्ड, ठीक है, वो गिवन इनकम बोल दीजिए उसको, ठीक है, तो भी ये माना जाएगा कि वो इनकम जो है फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं होगी, ओके। तो फर्स्ट अजम्पशन इज कंज्यूमर्स इनकम विल बी और विल रिमेन फिक्स्ड, इट विल नॉट चेंज, ओके, थ्रू आउट द प्रोसेस। जो इंडिफरेंस कर्व की जो हम प्रोसेस पढ़ेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं कि ज़िंदगी भर चेंज ही नहीं होगी, फ्यूचर में चेंज हो सकती है, हम इंडिफरेंस कर्व की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जब तक हम इंडिफरेंस कर्व को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, जितने भी पॉइंट्स लेके, जितने भी कॉम्बिनेशंस लेके गुड्स के, ठीक है, तब तक उस ड्यूरेशन में, उस प्रोसेस में कंज्यूमर की इनकम चेंज नहीं होगी। अगर चेंज हो जाती है तो इक्विलिब्रियम, सॉरी, जो इंडिफरेंस कर्व है वो भी चेंज हो सकता है, ठीक है। तो हम मान के चलेंगे कि कंज्यूमर की जो इनकम है वो गिवन है एंड इट will remain constant और it will not change, ठीक है, तो कंज्यूमर की इनकम में कोई चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट वन, ये भी हमने डिस्कस किया था कि कंज्यूमर अपनी गिवन इनकम को दोनों ही कमोडिटीज के ऊपर पूरी तरह स्पेंड करता हुआ होना चाहिए, ओके। सो सेकंड अजम्पशन इज द कंज्यूमर हैज टू स्पेंड हिज whole income on the two commodities, okay, or buying of the some units of two commodities, okay. The consumer has to spend his or her इनकम, ओके, उसको अपनी इनकम फुली स्पेंड करनी पड़े, कंज्यूमर हैज टू स्पेंड फुली, ठीक है, और कंज्यूमर हैज टू फुली स्पेंड हिज इनकम ऑन द गिवन कमोडिटीज, उन कमोडिटीज के ऊपर उनको फुली स्पेंड करनी होगी अपनी इनकम, ठीक है। नेक्स्ट वन इज, और वो गुड्स सब्सटीट्यूट होंगे एक दूसरे की, ठीक है, क्योंकि हाँ कल भी हमने डिस्कस किया था कि अगर एक ही कमोडिटी को खरीद रहा है तो सारी यूनिट्स उसी कमोडिटी की सॉरी खरीदेगा, 10 यूनिट्स एक की और 0 यूनिट्स दूसरी कमोडिटी की, ओके। तो दैट मीन्स ऐसा तभी होगा जब सब्सटीट्यूट्स है, ठीक है, जब सब्सटीट्यूट नहीं है तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हालांकि हम दो का कॉम्बिनेशन लेके चलते हैं, ठीक है, तो एक की ज़्यादा कंज्यूम करेगा दूसरे की कम, ठीक है, कभी बढ़ा रहा है किसी की, कभी कम कर रहा है, तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब सब्सटीट्यूट है। लाइक अगर हम कॉम्बिनेशन जब आगे देखेंगे तो लाइक लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हमने पढ़ा कि एक कमोडिटी का जब ज़्यादा कंज्यूम करेंगे या एक्स्ट्रा यूनिट्स या सक्सेसिव यूनिट्स कंज्यूम करते हैं तो मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जाती है, ठीक है, तो जिसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जाएगी उसका कंजम्पशन हम कम कर देंगे और दूसरे का बढ़ा देंगे, ठीक है। तो ये पॉसिबल, ये जो शिफ्टिंग हुआ, एक का कम कर दिया और दूसरे का कंजम्पशन बढ़ा दिया, ये शिफ्टिंग तभी पॉसिबल होती है जब सब्सटीट्यूट गुड्स है, ठीक है। जब सब्सटीट्यूट नहीं है, ठीक है, तब उनका कंजम्पशन शिफ्ट नहीं कर सकते, ओके। लाइक लाइक फ्रूट्स को हम लेके चल रहे, ठीक है, तो फ्रूट्स जो हम कंज्यूम कर रहे हैं तो वो फ्रूट्स जो सिट्रस हैं, फॉर एग्जांपल द सिट्रस फ्रूट्स जो सिट्रस फैमिली को बिलोंग करते हैं, तो सिट्रस फ्रूट्स में बहुत सारे आते हैं तो एक दूसरे के सब्सटीट्यूट होंगे, लेकिन सिट्रस फ्रूट और दूसरा जो कोई फ्रूट है उन दोनों को हम सब्सटीट्यूट नहीं मान के चल सकते क्योंकि दोनों का काम अलग अलग है, ठीक है, तो सब्सटीट्यूट मान के हम चलेंगे, दोनों गुड्स जो लेके चल रहे हैं वो एक दूसरे की सब्सटीट्यूट्स हैं, एक को दूसरे की जगह पे यूज़ किया जा सकता है, कम या ज़्यादा किया जा सकता है कंजम्पशन को, ओके। नेक्स्ट assumption is important, like they are saying the intensity of desire, okay, हालांकि कॉमन बेसिस में, कॉमन पार्लेंस में हम इसको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि the intensity of desire for a good would increase when he has less of it, okay, the intensity of desire, दैट इज इच्छा की गहनता, दैट मीन्स हम किसी चीज़ को खाने की जो डिज़ायर होगी वो कब होगी ज़्यादा, या किसी चीज़ को पाने की जो डिज़ायर है वो कब होगी ज़्यादा या स्ट्रॉन्ग, यू कैन से स्ट्रॉन्ग डिज़ायर वुड बी फॉर अ गुड, और a strong desire would arise for a good which is less in quantity with us, okay, हमारे पास जो चीज़ कम है
उसी की डिज़ायर हमारे लिए स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और जो चीज़ बहुत ज़्यादा है, ठीक है, जो चीज़ ज़्यादा क्वांटिटी में है, उसकी जो इच्छा है, उसकी जो इंटेंसिटी ऑफ डिज़ायर है वो कम हो जाएगी। ऑब्वियसली वेरी सिंपल, कॉमन अगर हम देखें कॉमनली जनरली, तो जनरली भी ऐसा ही होता है कि जो चीज़ हमारे पास बहुत ज़्यादा है, ठीक है, सिंपली जो चीज़ बहुत ज़्यादा है उसकी वैल्यू हम कम करते हैं, लाइक उसका इम्पोर्टेंस हमारे लिए कम है। और जो चीज़ हमारे पास है नहीं या फिर बहुत कम क्वांटिटी में है, तो उसके लिए हमारी इंटेंसिटी ऑफ डिज़ायर बढ़ जाएगी। दैट मीन्स हमें वही चाहिए, ठीक है, जो चीज़ हमारे पास नहीं है या जो चीज़ हमारे पास कम है, ठीक है। क्लियर, सिंपल सी बात है, जनरली भी ऐसा ही होता है, ठीक है। तो द इंटेंसिटी ऑफ डिज़ायर फॉर ए गुड वुड इंक्रीज। ओके, एक कमोडिटी के लिए हमारी इंटेंसिटी ऑफ डिज़ायर, ठीक है, इच्छा की जो गहनता है, दैट मीन्स स्ट्रॉन्ग डिज़ायर तब अराइज होगी जब हमारे पास वो चीज़ कम है, व्हेन he or she has less of it। एक कंज्यूमर के लिए बोला गया है, ठीक है। द इंटेंसिटी ऑफ डिजायर फॉर ए गुड would increase when the consumer has less of it, okay, and इसका opposite vice versa, that means intensity of desire would reduce, okay, intensity of desire जो है कम हो जाएगी when he has more of it, okay, जब उसका ज़्यादा क्वांटिटी कंज्यूमर के पास है तो उसकी इंटेंसिटी ऑफ डिज़ायर उस कमोडिटी के लिए कम हो जाएगी। क्लियर, सो इंटेंसिटी ऑफ डिज़ायर एक पॉइंट हमने बना लिया, ठीक है। तो हेडिंग बना देंगे इंटेंसिटी ऑफ डिज़ायर, ओके। Intensity of desire would increase for the commodity which is less in quantity with the consumer, okay, जिसकी कंज्यूमर के पास कमी है या जो कम क्वांटिटी में कंज्यूमर के पास अवेलेबल है, उसकी इंटेंसिटी ऑफ डिज़ायर या उसकी इच्छा या स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होगी देन द अदर विच इज़ इन मोर क्वांटिटी विद द कंज्यूमर, ओके। सो इंटेंसिटी ऑफ डिज़ायर कम या ज़्यादा कब होगी, जब इंटेंसिटी ऑफ सॉरी जब कमोडिटी कम क्वांटिटी में है तो इंटेंस डिज़ायर अराइज हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर अराइज हो जाएगी। और जब वो बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है, ठीक है, वी आर ऑलरेडी हैविंग मोर क्वांटिटी और सरप्लस, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास सरप्लस है तो उसके लिए हम उतना इंटेंसली डिज़ायरस नहीं होंगे, ठीक है। सो इंटेंसिटी ऑफ डिज़ायर क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है। Next one is monotonic preferences. Now what are monotonic preferences? Okay, monotonic preferences says more of a good will always give more satisfaction, okay, more of a good always gives more satisfaction, okay। कंज्यूमर को ज़्यादा सेटिस्फेक्शन कब मिलता है, जब किसी कमोडिटी की क्वांटिटी उसके पास ज़्यादा है, ठीक है। तो दिस इज मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस। यहाँ पे लोग डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, हम मार्जिनल यूटिलिटी की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लाइक मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आईसी कर्व में यूज होता है मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस, ठीक है, इसलिए इस अजम्पशन को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है जो कि पिछले चैप्टर में नहीं था, ठीक है। सो ऑर्डिनली हम इसको यूज करेंगे। तो मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस कई बार 1 मार्क में क्वेश्चन भी आ जाता है, व्हाट इज consumers monotonic preferences, okay, what does monotonic preferences state। तो monotonic preferences क्या बताता है कि एक commodity अगर ज़्यादा है, ठीक है, या ज़्यादा यूनिट्स ही, ठीक है, सॉरी वी आर नॉट सेइंग more of a good, that means ज़्यादा units of a commodity, more units of a commodity will always give more satisfaction, ठीक है, कंजम्पशन की बात नहीं हो रही है, ठीक है। more units of a good always give more satisfaction, okay, this is monotonic preferences। next one is the consumer is rational। ये मान के चला गया है consumer is rational, that means consumer विवेकपूर्ण है, सोचता समझता है, ठीक है, सोच समझ के खर्च करता है, ठीक है। so consumer is rational, he always tries to maximize his satisfaction in given situation। या फिर हम ये भी लिख सकते हैं he always tries to maximize his satisfaction within his given income। वो अपने given income में ही अपनी जो satisfaction है उसको maximize करना चाहता है, ठीक है, तभी वो रैशनल है, ठीक है। तो गिवन इनकम है, इनकम चेंज नहीं होगी, तो उसी इनकम में उसे पता है कि सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम कैसे वो अटेन करे और हाउ he or she can get or obtain maximum satisfaction within his given income, okay, that's why he makes certain plans or certain calculations that his or her satisfaction could get maximum, okay, वो maximum तक पहुंच सके। क्लियर, तो ये थे कुछ assumptions जो कि हमने इंडिफरेंस कर्व के लिए लेके चले। नेक्स्ट हम इंडिफरेंस कर्व को डिस्कस करते हैं। So here is indifference set, okay, so before drawing the curve we have to take the data, numerical values, okay, so, and that numerical values are presented in the tabular form, okay, and that tabular form is known as schedule। clear, so हम यहाँ पे indifference schedule या indifference set को discuss करते हैं। clear, now the indifference set, क्या है indifference set? Indifference set is the combination of two goods, okay, which offers the same level of satisfaction। clear, what is indifference set? Indifference set is the combination of
टू गुड्स, ओके, दो गुड्स का ऐसा कॉम्बिनेशन है जो कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देता है, ओके, वट एवर यूनिट्स वी आर getting, okay, sorry, consuming, the level of satisfaction will remain same, okay. For example, we have the table, in first column it is combination, okay, different combinations are named as A, B, C, D, okay, whatever numbers we can use, some like letters we can use. The next column is the number of apples, and the next column say the number of oranges. We are having the two goods, okay, two fruits हमने लिए हैं, ठीक है, उनकी different units हम consume कर रहे हैं, clear. At combination A, when one unit of apple was being consumed, or one apple was being consumed along with the 10 oranges, okay, जो कॉम्बिनेशन ए है वो क्या बता रहा है कि कंज्यूमर एक एप्पल और 10 ऑरेंजेस कंज्यूम कर रहा है. सो बाय कंज्यूमिंग वन एप्पल एंड 10 ऑरेंजेस, okay, whatever was the level of satisfaction will be the same at level B, oh sorry, combination B, okay, whatever the level of satisfaction was there by consuming one apple and 10 oranges will be or will remain same at combination B by consuming two apples and 7 oranges, okay. जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन एक एप्पल और 10 ऑरेंजेस को कंज्यूम करके कंज्यूमर ने अटेन किया, द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, ओके, वो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन वो 2 एप्पल्स और 7 ऑरेंजेस के साथ भी अटेन कर सकता है. दैट मीन्स the level of combination will remain same or will not change. The level of satisfaction, sorry, okay, the level of satisfaction will remain same or it will not change, okay, by changing the units of the commodities, okay. commodities की units हमने change कर दी हैं, ठीक है. पहले हम ऑरेंज ज़्यादा कंज्यूम कर रहे थे, नाउ वी आर इंक्रीजिंग द नंबर और द कंजम्पशन ऑफ एप्पल. अब हम यहाँ पे एप्पल का कंजम्पशन इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है. सी, पहले एप्पल एक था और 10 ऑरेंजेस थी, अब हम एप्पल का कंजम्पशन बढ़ा रहे हैं, ठीक है, ऑरेंज का कम किया है. दो इट इज़ नॉट इन सेम प्रोपोर्शन, कीप रिमेंबर, ये सेम प्रोपोर्शन में नहीं होगा. ज़रूरी नहीं है कि अगर हमने एप्पल की एक यूनिट इंक्रीज की है तो ऑरेंज की भी एक ही यूनिट हम रिड्यूस करें. या फिर सिंपली बोलें तो अगर एक एप्पल का कंजम्पशन इंक्रीज किया है तो ज़रूरी नहीं है एक ही साथ से या दूसरी तरफ से एक ही ऑरेंज का कंजम्पशन हम रिड्यूस करेंगे. नो, इट इज़ नॉट नेसेसरी, ठीक है. ये हम आगे पढ़ेंगे कि किसके ऊपर बेस्ड है कि कितनी यूनिट्स हम सेक्रीफाइस करेंगे, ठीक है, टू गेन some units of a commodity, how many units of the other commodity are being sacrificed, okay. एक की गेन करने के लिए दूसरे की कितनी सेक्रीफाइस करेंगे, किस पैटर्न के ऊपर डिपेंड करता है, ये हम आगे देखेंगे, ठीक है. सो वी हैव डिफरेंट कॉम्बिनेशंस A, B, C, D, okay. डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हमें क्या बता रहे हैं? बाय ऑब्जर्वेशन वी हैव फाउंड आउट दैट we are increasing the consumption of apple and on the other side the consumption of oranges are being decreased or reduced, okay. But the level, the point is, जैसे हमने assumption में पढ़ा, ठीक है, level of satisfaction will remain same, ठीक है. satisfaction का जो level है वो same रहेगा, ठीक है, वो change नहीं होगा. at every combination the level of satisfaction will remain same, ठीक है. यही indifferent set है, clear. इन जब combination को हम जो पढ़ेंगे तो ये combination क्या बन जाएगा? indifferent set है. what is indifferent set? the combination of two goods, okay, the combination of two goods which gives same level of satisfaction. दो गुड्स का ऐसा कॉम्बिनेशन जो कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रहा है, उसी को हम इंडिफरेंट सेट कह देंगे, ओके. सो ए पे भी सेटिस्फेक्शन लेवल सेम रहेगा, सी पे भी सेम रहेगा, बी पे भी सेम रहेगा और डी पे भी सेम रहेगा, ओके. That's why it is named as indifferent set, okay. The consumer will be indifferent at or across any combination or all the combination, ठीक है. कंज्यूमर इंडिफरेंट होगा, ठीक है, सभी कॉम्बिनेशंस को लेके. वो सी में भी हो सकता है, सी में भी रह सकता है, ए में भी रह सकता है, दैट मीन सेटिस्फाइड. ए में भी रह सकता है, सी में भी रह सकता है, बी और डी में भी रह सकता है, ओके. सो कंज्यूमर इज इंडिफरेंट अक्रॉस द कॉम्बिनेशन बिकॉज वेरी सिंपल, कंज्यूमर इंडिफरेंट क्यों है? क्योंकि सभी कॉम्बिनेशन उसको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रहा है, ठीक है. अगर सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन नहीं देते कॉम्बिनेशन, कोई ज़्यादा दे रहा होता, कोई कम सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर रहा होता, तो कंज्यूमर इंडिफरेंट नहीं होता, ओके. सो द रीजन ऑफ कंज्यूमर्स इंडिफरेंट और बीइंग इंडिफरेंट, ओके, कंज्यूमर अक्रॉस द पॉइंट्स इंडिफरेंट रहेगा, या कंज्यूमर्स के इंडिफरेंस के पीछे रीजन क्या है कि ऑल द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स गिव सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन. सारे कॉम्बिनेशन क्या है? ये है, ठीक है. 1:10,
D में 2:7, C में 3:5, D में 4:4, ठीक है। दीज आर द कॉम्बिनेशन, ओके। कंजम्पशन पैटर्न उसका यही है, तो हर कॉम्बिनेशन उसको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। दैट्स वाई द कंज्यूमर इज इनडिफरेंट, ठीक है, वो किसी पे भी रहना चाहेगा, B, C, D, वॉट एवर इट इज, ओके। नाउ come to the graphic presentation of indifference set, okay, this is called indifference curve, clear। indifference curve क्या है? graphic presentation of indifference set, okay, or more clearly if you define what is indifference curve? Indifference curve is the graphic presentation of all the combination of two goods which give the same level of satisfaction to the consumer, okay, I repeat, what is indifference curve? The graphic presentation of all the combinations, okay, combination हमने देखे, जितने मर्जी हम बना सकते हैं combinations, okay, so the graphic presentation of all the combinations of two goods which give same level of satisfaction to the consumer, ठीक है। उन सभी combinations का graphic presentation है, जब उन सभी combinations को graphically present कर देते हैं, ठीक है, कौन से combinations? which give the same level of satisfaction, okay, so उन सभी combination का graphic presentation क्या है? indifference curve, clear। indifference curve is the graphic presentation of all the combinations which give same level of satisfaction, okay, right। यहाँ पे हमें curve दिख रहा है, कर्व ड्रॉ करते हैं तो हम दो एक्सिस लेके चलेंगे, ओ एक्स एक्सिस एंड ओ वाई एक्सिस। अभी तक हम सारा ऐसा ही करते हैं, जितने भी कर्व्स हमने ड्रॉ किए हैं, सो सेम पैटर्न हम फॉलो करेंगे, ओ एक्स एक्सिस ओ वाई एक्सिस, ओके। अब दो कॉमोडिटीज हम लेके चल रहे हैं, तो किसी एक एक्स पे हम एक कॉमोडिटी और दूसरी कॉमोडिटी दूसरे एक्स पे दिखा देंगे, ठीक है, एप्पल एंड ऑरेंजेस जैसे इन्होंने दिखाया है, ओके। देन उस कॉम्बिनेशन को हम लेके आएंगे, ए कॉम्बिनेशन, बी कॉम्बिनेशन, सी कॉम्बिनेशन एंड डी कॉम्बिनेशन। ए कॉम्बिनेशन 10:1 का था, बी 7:2 का था, सी 5:3 का था एंड डी 4:4 का था, ठीक है। कुछ एप्पल की कुछ यूनिट्स एंड ऑरेंजेस की कुछ यूनिट्स के कॉम्बिनेशन को ही दिखा रहा है ये कर्व, ठीक है। जब पॉइंट्स को हमने मिलाया तो एक कर्व हमें मिला, ठीक है, इंडिफरेंस कर्व, क्लियर। नाउ लेट्स डिस्कस सम मोर पॉइंट्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व, क्लियर। इंडिफरेंस कर्व का डेफिनेशन हम डिस्कस कर चुके हैं, क्या है ये। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टीज आती हैं, ठीक है। वी हैव द टू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व की हम दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे हमने पीपीसी की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, वैसे ही इंडिफरेंस कर्व की भी प्रॉपर्टीज है। फर्स्ट वन इज, हालांकि बहुत सिंपल है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट इनके पीछे काम करेगा, ठीक है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है एंड वी विल गेट टू नो what exactly these are or what exactly they are telling about, okay। IC slopes downward, okay, as we see indifference curve, okay। indifference curve downward sloping होता है, ठीक है। why? because हम जो ए कॉम्बिनेशन दिखा रहे हैं वो हमारा वेरी फर्स्ट कॉम्बिनेशन था, देन ए से हम बी पे मूव करें, हमने उल्टा नहीं दिखाया कि ए नीचे फिर बी ऊपर देन सी, ओके। सो वेरी फर्स्ट कॉम्बिनेशन हमने ए ऊपर दिखाया, फिर बी, फिर सी। ये चल भी इसी तरीके से रहा है कि ए कॉम्बिनेशन में ऑरेंजेस ज़्यादा कंज्यूम कर रहे थे और एप्पल कम, बी कॉम्बिनेशन में ऑरेंजेस कम एंड एप्पल ज़्यादा, और एंड सो ऑन। एप्पल कंजम्पशन ऑफ एप्पल इज गेटिंग इंक्रीज विद एवरी कंजम्पशन, सॉरी कॉम्बिनेशन, ओके। सो इसी तरीके से हमने दिखाया, तो हमें याद रखना है कि आईसी जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, ठीक है। अब ये डाउनवर्ड स्लोपिंग आईसी बताता क्या है, ओके। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एक लाइन का कॉन्सेप्ट है कि व्हाट डज द डाउनवर्ड स्लोपिंग आईसी टेल, क्लियर, और स्टेट। यहाँ आईसी डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है? आईसी डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है कि व्हेन more of a commodity are being consumed, the other commodity will be consumed less, okay, or when more units of a good are consumed, less units has to be consumed of other commodity। जब एक commodity की ज़्यादा units consume की जा रही हैं consumer के द्वारा, तो दूसरे की obviously कम consume कर रहा होगा, ठीक है, दोनों की equal नहीं कर रहा होगा, ठीक है, ओके। सो एक कंज्यूमर ज़्यादा कंज्यूम करेगा एक commodity को, तो दूसरे की कम करेगा, ओके। सो मोर ऑफ, if a consumer is consuming more of one good, the other is definitely to be consumed less। एक की ज़्यादा है तो दूसरे की कम ही कंज्यूम करनी पड़ेंगी, ये कॉम्बिनेशन हम बना के चलेंगे। दैट्स वाई आईसी स्लोप्स डाउनवर्ड, ओके। आईसी का स्लोप डाउनवर्ड होता है, एक की ज़्यादा तो दूसरे की कम, क्लियर। कैसे भाई? ए कॉम्बिनेशन में हम ए की ज़्यादा कंज्यूम कर रहे थे और बी की कम,
देन हमने क्या किया, बी कॉम्बिनेशन में ए की रिड्यूस कर दी और बी की इंक्रीज कर दी। दैट मीन्स नाउ वी आर वांटिंग और नाउ वी आर विलिंग टू कंज्यूम more units of B commodity as compared to A. Okay, that's why we have reduced the consumption of A commodity. अब हम B commodity का consumption ज़्यादा करना चाहते हैं, इसीलिए हमने B commodity का consumption कम कर दिया है। ओके, सो बेसिकली IC का जो डाउनवर्ड स्लॉपिंग कॉन्सेप्ट है वो कहता है कि एक commodity ज़्यादा कंज्यूम की जा रही है तो दूसरी कम की जाएगी। ओके, क्लियर? और द कंजम्पशन ऑफ वन consumption of more of a commodity is combined with less of other commodity। जैसे हमें यहाँ पे दे रखा है more of one good must be combined with less of other, बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। या फिर हम उसको सिंपली कह सकते हैं when one commodity is consumed more, okay, the other will be consumed in less quantity। okay, एक ज़्यादा कंज्यूम की जा रही है तो दूसरी कम कंज्यूम की जाएगी। ओके, बेसिक सा सिर्फ इतना सा ही कॉन्सेप्ट था डाउनवर्ड स्लॉपिंग के पीछे। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी सेज IC इज कन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। ओके, हमने डायग्राम में भी देखा कि ये जो IC है, इंडिफरेंस कर्व है, दिस इज कन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। पॉइंट ऑफ ओरिजिन O है, ये कन्वेक्स है। ठीक है, मीन्स जो ये टिल्ट हम देख रहे हैं, ठीक है, झुकाव या इंक्लिनेशन जो हम देख रहे हैं, किसकी तरफ है? पॉइंट ऑफ ओरिजिन की तरफ है। ठीक है, क्लियर? ओके, ये जो बल्ज है, ठीक है, सो द बल्ज इज टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। जो कर्व में जो बल्ज हम देख रहे हैं, इंक्लिनेशन जो हम देख रहे हैं, ठीक है, वो किसकी तरफ है? पॉइंट ऑफ ओरिजिन की तरफ। क्लियर? सो IC ये कन्वेक्स हो गया। ठीक है, तो कन्वेक्सिटी किसकी तरफ है? O की तरफ। जैसे हम कन्वेक्स और कनकेव जो मिरर एंड लेंस पढ़ते हैं, ठीक है, साइंस में, तो हमें पता है कि कनकेव का शेप कैसा होता है। तो कनकेविटी किसकी तरफ है? ये बता रहा है IC इज कन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। ओके, तो जो बल्ज है कर्व में, वो बल्ज किसकी तरफ होना चाहिए? वो बल्ज पॉइंट ऑफ ओरिजिन O की तरफ होना चाहिए। ठीक है, सो ये प्रॉपर्टी है कि वो O की तरफ ही है, पॉइंट ऑफ ओरिजिन की तरफ ही है कन्वेक्स। अब ये प्रॉपर्टी क्या कहती है? इस प्रॉपर्टी का भी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। ये प्रॉपर्टी कहती है कि व्हेन द कंज्यूमर, सिंपल है, बहुत सिंपल है, व्हेन द कंज्यूमर increases the consumption of a commodity, okay, when the consumer increases the consumption of a commodity, he must reduce the other commodity, sorry, the consumption of other commodity। okay, जब एक कंज्यूमर एक कॉमोडिटी का कंजम्पशन बढ़ाता है, ठीक है, तो दूसरी कॉमोडिटी का कंजम्पशन वो डिक्रीज करेगा। ठीक है, ये बताता है कन्वेक्सिटी ऑफ IC कर्व। ठीक है, मोर क्लियरली अगर हम इसको डिफाइन करें कि कन्वेक्स क्यों होता है, तो जो रिडक्शन होती है, जो सेक्रीफाइसिंग रेट होती है, वो कम होती जाती है। मीन्स व्हेन द कंज्यूमर वांट्स टू इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ अ कमोडिटी, when the consumer increases, not wants, when the consumer increases the consumption of a commodity, he will reduce the consumption of other commodity at a reducing rate। okay, he will reduce the consumption of other commodity at a reducing rate। okay, the consumer will be willing to sacrifice less and less units of a commodity to gain another or more units of other commodity। एक commodity की एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम, हर एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने के लिए अब कंज्यूमर हर बार कम से कम सेक्रीफाइस करना चाहेगा। ठीक है, कम से कम सेक्रीफाइस करना चाहेगा। सपोज फॉर एग्जांपल, पहले एक एप्पल जो है, जहाँ पे हम पीछे वाले में चले जाएं, ठीक है, टेबल हमें क्या दिखा रही थी कि जब हम एक एप्पल कंज्यूम करते थे तो 10 ऑरेंजेस कंज्यूम करते थे। नाउ वी आर इंक्रीजिंग द कंजम्पशन ऑफ एप्पल। ओके, दैट मीन्स टू इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ अ कमोडिटी, द कंज्यूमर मस्ट डिक्रीज द कंजम्पशन ऑफ अदर कमोडिटी। ओके, सो एक एक्स्ट्रा एप्पल कंज्यूम करने के लिए उसने ऑरेंजेस सेक्रीफाइस कर दी। कितनी करी? ठीक है, ये तो स्लोप डाउनवर्ड का था कि एक के एक्स्ट्रा कंज्यूम करने के लिए दूसरे की सेक्रीफाइस करनी पड़ेंगे। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डाउनवर्ड स्लोपिंग IC। ओके, एक की इंक्रीज करेगा तो दूसरे की डिक्रीज करनी पड़ेगी, ये कॉन्सेप्ट था स्लोप डाउनवर्ड प्रॉपर्टी वाला। ठीक है, क्लियर? एक की ज़्यादा तो दूसरे की कम, दैट मीन्स एक की इंक्रीज करने के लिए दूसरे की सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। ठीक है, दैट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ डाउनवर्ड स्लोपिंग। नाउ द कन्वेक्सिटी ऑफ IC टेल्स दैट
how many units are being sacrificed with every successive consumption. With every successive consumption of a commodity, how many units are being sacrificed for the sorry of the other, दूसरी commodity की कितनी यूनिट sacrifice करता है वो, ठीक है. तो for every successive unit, for every successive consumption of a commodity, the consumer will be willing to sacrifice less and less units of other commodity. I repeat, जो कन्वेक्सिटी है या कन्वेक्स क्यों होता है, वो होता है इस वजह से फॉर एवरी सक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ ए कमोडिटी, फॉर एवरी सक्सेसिव मीन्स इंक्रीजिंग कंजम्पशन, ठीक है. तो फॉर एवरी सक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ ए कमोडिटी, जैसे एप्पल का हम बढ़ा रहे हैं तो इसको क्या कहेंगे, सक्सेसिव कंजम्पशन. ओके, फॉर एवरी सक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ ए कमोडिटी द कंज्यूमर विल बी विलिंग टू सेक्रीफाइस लेस एंड लेस यूनिट्स ऑफ अदर कॉमोडिटी. ओके, जैसे यहाँ पे एक एप्पल का कंजम्पशन बढ़ाया तो कितने सेक्रीफाइस की ऑरेंजेस, 3. फिर 2 से 3 मीन्स अगेन एक एप्पल का कंजम्पशन बढ़ा दिया तो यहाँ से 7 से 5, अब 5 ऑरेंजेस कंज्यूम कर रहा है, पहले 7 कर रहा था. तो कितनी ऑरेंजेस सेक्रीफाइस की हैं, 2 ऑरेंजेस सेक्रीफाइस हुई हैं. अगेन एक एप्पल का कंजम्पशन बढ़ा दिया 3 to 4, अब उसने एक ऑरेंज का सेक्रीफाइस किया है 1 का. तो पहले 3 ऑरेंजेस सेक्रीफाइस की थी 10 to 7 तक पहुँचने के लिए, देन 2 ऑरेंजेस सेक्रीफाइस की, देन 1 ऑरेंज ही सेक्रीफाइस की. लेकिन इधर हर मीन्स जो कंजम्पशन है ये एप्पल का वो एक यूनिट से बढ़ रहा है. तो हम कह सकते हैं कि फॉर एवरी सक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ ए कमोडिटी द कंज्यूमर विल बी विलिंग टू सेक्रीफाइस लेस एंड लेस. ठीक है, पहले के मुकाबले अब इस कमोडिटी का कंजम्पशन जो है घटा रहा था तो अब कम घटाएगा वो. ठीक है, पहले ज़्यादा घटा रहा था अब कम घटाएगा. क्यों, यहाँ पे एमआरएस का लॉ अप्लाई होता है. ठीक है, अभी एमआरएस मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन क्या होता है, ठीक है, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, ये हम नेक्स्ट पढ़ेंगे. ठीक है, तो यहाँ तक हमने पढ़ा प्रॉपर्टीज इंडिफरेंस कर्व की कि वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है. तो डाउनवर्ड स्लोपिंग का मतलब क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग का मतलब है एक की अगर इंक्रीज करता है तो दूसरे की डिक्रीज करनी पड़ेगी, बस इतना है. कितनी करनी पड़ेगी, किस पैटर्न में करेगा, ये हमें नहीं बताना. ठीक है, तो डाउनवर्ड स्लोपिंग इंडिफरेंस कर्व क्या कहता है, इफ द कंज्यूमर वांट्स टू इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ ए कमोडिटी he must decrease or he must sacrifice the other commodity or some units of the other commodity. कितनी ये नहीं बताना. ठीक है, सिर्फ डाउनवर्ड स्लोपिंग में इतना बताना है, एक की इंक्रीज करने के लिए दूसरे की घटानी पड़ेगी. कन्वेक्सिटी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, कन्वेक्सिटी बताती है फॉर एवरी सक्सेसिव कंजम्पशन. ओके, हर एक सक्सेसिव कंजम्पशन के साथ वो लेस एंड लेस सेक्रीफाइस करना चाहेगा, पहले के मुकाबले कम सेक्रीफाइस करेगा. ओके,